آپ ہلاکت کے دور میں نہیں پھر فضل کے دور میں ہیں۔ آپ نے وہ گناہ جن کی قیمت آپ نے چکانی تھی، آپ کی اولاد نے چکانی تھی، جیسے زمانہ قدیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنی اولادوں کی بلی چڑھانی پڑتی تھی، مگر ہماری زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ خداوند خدا کا ہم پر فضل ہی ہے، اور اسی وسیلے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نئی مخلوق ہیں۔ انسان تو انسانوں جیسے ہیں، انسان تو انسانوں کی مشابہت ہی ہیں، مگر خداوند خدا کا جو فضل، جو الٹیمیٹ فیور ہم لوگوں کو ملی ہے، وہی ہمیں نئی مخلوق بناتی ہے۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں پاسٹر جی کے لیے۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیں موٹیویٹ کیا ہے، اور جو چیزیں مشکل لگتی ہیں ہمیشہ ان کو آسان بنا کر ہمیں بتایا ہے، تاکہ ہم مؤثر طور پر خدا کی خدمت کر سکیں۔ اور میرا دل خداوند کے حضور اس بات کے لیے بھی مسرور ہے کہ جتنے بھی لوگ میں یہاں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت میں خدا سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ کبھی بھی ناغہ نہیں کرتے، اور خداوند خدا کنسسٹنسی کو لائک کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ سسٹر جی نے پرستش میں حوالہ دیا تھا، وہ عورت جس کو خون آتا تھا، وہ کنسسٹنسی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس، اور ہر جگہ جاتی تھی، مگر اس کے معجزے کا ایک دن تھا۔ اس دن بھیڑ بھی بہت زیادہ تھی، اور وہ کمزوری کے سبب سے کبڑی بھی ہو چکی تھی، مگر اس نے اپنی ثابت قدمی سے اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹایا، اور اس نے یسوع کے پلو کو چھوا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ ہلیلویا۔ جب آپ سب یہاں پر آئے ہیں تو خداوند خدا کا آپ سب لوگوں کی زندگی میں آج بڑا منصوبہ ہے۔ ہم لوگوں نے آج کے کلام کو دل سے ریسیو کرنا ہے، کیونکہ ہم کلام سنتے بہت ہیں، اس کو زندگی میں نہیں لاتے، جس کی وجہ سے زندگیاں بے پھل رہ جاتی ہیں۔ یہ سال 2025 جو ہے، یہ سال فتح سے بڑھ کر غلبے کا ہے، اور فضل پہ فضل کا دور ہے۔ تو آج ہم سب کلام خدا میں سے سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے خدا کے حضور چلنا ہے۔ ہلیلویا۔ ایک دفعہ زوردار تالیاں خدا کے نام کے لیے بجا دیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہم نئی مخلوق ہیں یا پرانی مخلوق ہیں؟ ہم نئی مخلوق ہیں یا پرانی ہیں؟ ہلیلویا۔ نئی مخلوق کیوں ہیں ہم؟ ایسا کیا ریزن ہے، ایسا کیا سبب ہے جو ہمیں نئی مخلوق بناتا ہے؟ جبکہ خدا کے ہاں تو مخلوقات کا ذکر ملتا ہے، اور جب ہم زمین پر، آسمان پر، سمندر پر، جہاں کہیں بھی نظر کرتے ہیں تو ہمیں مختلف مخلوقات نظر آتی ہیں، چرند پرند کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں۔ جب ہم بر اعظم سے بر اعظم جاتے ہیں تو کہیں ہمیں سفید چمڑی والے لوگ ملتے ہیں، کہیں کالی چمڑی والے لوگ ملتے ہیں، اور کہیں دیکھیں تو گندمی رنگت والے لوگ ملتے ہیں۔ مگر کلام خدا نے اپنے لوگوں کو نئی مخلوق کہا ہے۔ نئی مخلوق اور پرانی مخلوق، یہ ٹرم ذرا دنیا میں کہیں سننے کو نہیں ملتی۔ یہ صرف سننے کو ملتی ہے تو تب جب ہم کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم کلام کو کھولتے ہیں، جب ہم کلام کو لے کر گہرے میں جاتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دو مخلوقات ہیں، ایک نئی اور ایک پرانی۔ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ نوح کے دور میں بہت بڑا طوفان آیا تھا، اور ساری خلقت رخصت ہو گئی تھی، فوت ہو گئی تھی، خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ وہ بھی مخلوق تھی، وہ بھی انسان تھے۔ اور اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو نوح جو بچایا گیا تھا، وہ اس لیے بچایا گیا تھا کیونکہ وہ خدا سے پیار کرتا تھا، خدا کے حکموں پہ چلتا تھا، اور خدا کے حکموں کی پاسداری کرتا تھا۔ اس کے بدلے میں خداوند خدا نے اس کو اور اس کے گھرانے کو محفوظ رکھا۔ مگر جب ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ خداوند خدا نے جب آسمان پہ سے نظر کی، انسانوں کی بدی بڑھ چکی تھی اور ہر کسی نے اپنے قوانین بنا لیے تھے، تو پھر خداوند خدا نے اس دنیا کا خاتمہ کر دیا۔ یہ تو تھی ایک مخلوق جو پرانی مخلوق تھی، اور اس کا خاتمہ ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ اس کے لیے کوئی نجات دہندہ آتا، بلکہ خداوند خدا نے ان سبوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب میں بات کرتا ہوں نئی مخلوق کی۔ نئی مخلوق آپ ہیں اور میں ہوں۔
آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم بھی طرح طرح کی بدی، برائی، گناہ، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، مگر خداوند خدا ہم پر ایسا عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ ہم لوگ نجات پائیں، ہم لوگ زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں، اس نے اپنے بیٹے کو نجات دہندہ بنا کر بھیج دیا۔ ہیلیلویا۔ تو اب آپ کو میرے خیال سے اس بات کا مطلب پتہ چل گیا ہوگا، نئی مخلوق کا اور پرانی مخلوق کا۔ ہیلیلویا۔ اب آپ اس بات کو بخوبی جان چکے ہوں گے کہ ہم مسیح میں رہتے ہوئے کیوں نئی مخلوق ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے 2 کرنتھیوں 5واں باب اس کی 17ویں آیت کہ کلام خدا اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ 2 کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی مخلوق ہے، وہ نئے سرے سے خلق کیا گیا ہے۔ عام طور پر جتنے بھی انسان ہیں وہ ایک خاص طریقہ کار کے بعد اس دنیا میں پیدائش پاتے ہیں اور عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، مگر جب وہ مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جب وہ مسیح کو مان لیتے ہیں اور جب مسیح پر اس بات کو جانتے ہوئے ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے، تو وہ پھر نئی تخلیق بن جاتے ہیں۔ ان کو پھر سمجھیں کہ نئے سرے سے جنم مل جاتا ہے، وہ نئے سرے سے بنا دیے جاتے ہیں، جس کا عکس دنیا سے بالکل جدا ہوتا ہے۔ نئی مخلوق جو خدا کے حکموں پر چلتی ہے، جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتی ہے، جس نے مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانا ہے، وہ نئی مخلوق ہے، جس کا ایمان اس بات پر ہے کہ مسیح یسوع میرے گناہوں کے لیے مرا، اس نے میرے گناہوں کا کفارہ دیا اور وہ موت پر غالب آیا اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ نئی مخلوق ہونے کا صرف دعویٰ کرنا میرے خیال سے ہماری زندگی کو بے پھل رکھتا ہے، کیونکہ جب میں مخلوق کو پرانی مخلوقیت سے نکل کر نئی مخلوقیت میں جانے کے بارے میں مطالعہ کر رہا تھا، تو میں نے اس بات کو جانا کہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند خدا نے اسے اپنے گلہ میں رکھا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کے دل کے خیال باطل ہیں۔ اس کے باوجود بھی انسان وہی خطا کرتا آ رہا ہے جو باغ عدن میں ہوئی تھی، کیونکہ کلام خدا اسے جن چیزوں کی ہدایت کرتا ہے، جس طریقے سے کلام خدا انہیں پابند کرنا چاہتا ہے، انسان ان طریقوں سے سرکشی کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ پرانی انسانیت میں رہتے ہیں۔ پرانی انسانیت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت دکھ نظر آئے گا۔ اگر آپ قوم بنی اسرائیل کی غلامی، اس غلامی کا عرصہ، اس عرصے میں ہونے والے مظالم کو دیکھیں تو آپ اس بات کو سمجھ لیں گے کہ پرانی انسانیت انسان دوست نہیں تھی۔ وہ انسان کو مارنے والی، انسان سے انتقام لینے والی تھی، مگر جب نئی انسانیت کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پیشتر آپ گناہ کرتے ہیں، آپ کے گناہوں کی قیمت کسی نے چکا دی ہے، آپ کے گناہوں کے لیے کوئی قربان ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پھر ہلاکت کے دور میں نہیں بلکہ فضل کے دور میں ہیں۔ آپ ہلاکت کے دور میں نہیں پھر فضل کے دور میں ہیں۔ آپ نے وہ گناہ جن کی قیمت آپ نے چکانی تھی، آپ کی اولاد نے چکانی تھی، جیسے زمانہ قدیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنی اولادوں کی بلی چڑھانی پڑتی تھی، مگر ہماری زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ خداوند خدا کا ہم پر فضل ہی ہے، اور اسی وسیلے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نئی مخلوق ہیں۔ انسان تو انسانوں جیسے ہیں، انسان تو انسانوں کی مشابہت ہی ہیں، مگر خداوند خدا کا جو فضل، جو الٹیمیٹ فیور ہم لوگوں کو ملی ہے، وہی ہمیں نئی مخلوق بناتی ہے۔ ہیلیلویا۔ عزیزو، اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں 4 افسیوں اس کی 24ویں آیت،
इफिसियों 4 बाब और उसकी 24वीं आयत। और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई, रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। कलाम खुदा हमें क्या तलकीन करता है? आपके पास वो तमाम रिवॉर्ड्स हैं जो आपको नई मखलूक होने के वसीला से मिलते हैं, और वो सब चीज़ें खुदा की तरफ से आप पर जारी हैं, मगर उसके बावजूद खुदावंद खुदा आपसे ये तलकीन करता है, आपको ये बात समझाना चाहता है, ये बात आपके गोश गुजार करना चाहता है, आप लोगों तक ये बात, ये खुशखबरी पहुंचाना चाहता है, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई और रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। रास्तबाजी, सच्चाई और पाकीज़गी का सरचश्मा कौन है? बुलंद आवाज से कोई कहेगा हालेलुया। जब हम मसीह यीशु में हैं, हमें नई रास्तबाजी को पहनना है, तो इसे हम कैसे पहनेंगे? ये तो कोई लिबास नहीं, ये तो कोई चादर नहीं जिसे हम ओढ़ लें, बल्कि ये तो एक अहद है, ये तो एक इजहार है, ये तो एक मोहब्बत का इकरार है जिसे हमने करना है। उसके बाद हम इस बात का एलानिया कह सकते हैं कि मैंने नई इंसानियत को पहन लिया है। वो नई इंसानियत क्या है और कैसे हम ले सकते हैं, उसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना 3 बाब और उसकी 3री आयत। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 3री आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही नहीं देख सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही नहीं देख सकता। नए सिरे से पैदा होना क्या है? आप लोगों की दानिश में क्या है नए सिरे से पैदा होना? आज भी जब इतनी रोशनी का दौर आ चुका है, जब खुदा के बहुत सारे खुदाम बपतिस्मे की तालीमात देते हैं, इसके बावजूद भी जब लोगों को बपतिस्मे की दावत दी जाती है तो वो इस चीज को कबूल करने के लिए राजी नहीं होते। मगर कलाम की तालीमात आप देखें क्या है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। नए सिरे से हम कब पैदा होते हैं? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम अपने आपको खुदा के हवाले करते हैं, और जब हम पानी में गोता लेते हैं तो उसी वक्त हम मसीह के साथ हलाक हो जाते हैं। और फिर जब हम गोता लेकर उठते हैं तो फिर उसी के साथ हम जी उठते हैं, और दुनिया की इंतहा तक फिर हम उसमें और वो हम में पेवस्त हो जाता है। हालेलुया। तो अजीजों, इस बात के लिए जरूरी है कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं कि जब आप चाहते हैं कि हम नई इंसानियत को ओढ़ लें, हम नई मखलूक बन जाएं, तो हमें जरूर ही बपतिस्मा लेना है। क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, अगर आप रोमियो 6 बाब उसकी 4 आयत से लेकर 9 आयत तक पढ़ेंगे तो आपको इस बारे में बड़ी वाज़िया तालीमात मिलेंगी कि खुदावंद खुदा किस तरीके से आप पर जलवागर होगा और कैसे आप एक पुरानी मखलूक से नई मखलूक हो जाएंगे, और किस तरीके से खुदावंद खुदा आप लोगों के साथ साथ चलेगा। पुरानी इंसानियत को तर्क करना हम सब मसीहों के लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो हकीकत में आपका जाहिर नहीं बल्कि आपका बातिन, आपका दिल, आपकी रूह नहीं हो जाती है। और जब आपकी रूह नहीं हो जाती है तो उसके असरात आपके चाल ढाल से, आपके बैठने उठने से और आपके खुदा के साथ चलने से जाहिर होते हैं। बपतिस्मा ना सिर्फ आपको मसीह के घराने में शामिल करता है, मसीह में पेवस्त करता है, बल्कि वो आपको असरे नो अंदर से लेकर बाहर तक नया कर देता है। हालेलुया। अजीजों, जरूर ही इस बात के लिए हमें खुद को तैयार करना है कि मसीह यीशु ने यह कहा है कि अब हम नई मखलूक हैं। पुरानी चीजें जाती रही। पुरानी चीजें क्या थी? आपने देखा होगा जमाने कदीम में
खुदा के लोगों का दुख, क्योंकि पुराने ज़माने में बहुत सी नबूवतें थी, बहुत से नबूवती कलाम थे, मगर हम वो खुश नसीब हैं जिस तकमील के दौर में से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ऐसे दुख और ऐसी तकलीफें इसलिए भी उठाई थी कि उस वक्त निजात दहिंदा अभी नहीं आया था। मगर जब हम इस दुनिया में आए हैं तो निजात दहिंदा इससे पहले कि हम आते वो आ चुका था और उसने हमारे गुनाहों की कीमत चुका दी थी। हम देखेंगे मुकाशफा 21 बाब उसकी 4 आयत, और हम देखेंगे कि पुरानी इंसानियत में क्या कुछ था, और उसके बाद हम देखेंगे कि खुदावंद खुदा ने हमें क्या अथॉरिटी दी है, आया कि हम उस अथॉरिटी में ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। मुकाशफा 21 बाब उसकी 4 आयत, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, इसके बाद ना मौत रहेगी ना मातम रहेगा, ना आहो नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। हालेलुया। मसीह यसू क्या करेगा? उनके आंसू पोंछ देगा, और फिर ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा और ना आहरो नाला और ना किसी तरह का कोई दर्द। अजीजों, हम सब के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि हम पुरानी इंसानियत को तर्क करें और नई इंसानियत में दाखिल हो जाएं। उसके लिए जरूर ही हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेंगे तभी हम खुदा में पेवस्त होंगे, और फिर खुदावंद खुदा वो तमाम वादे जो कलाम की बदौलत हमारी जिंदगी में उसने किए हैं वो जरूर पूरे होते हुए नजर आएंगे। आज आप देखें, हमारी जिंदगी में अगर आहो नाला है तो वो हमारी सख्तियां हैं, हमारी बेरुखियां हैं, हमारी नाफरमानियां हैं, और वो कलाम जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम सुनते हैं, उसे हम अपनी जिंदगी में काम नहीं करने देते। मगर कलाम खुदा ने तो इस बात का वाज़ेह इकरार कर दिया है कि पुरानी चीजें जाती रही। अगर जाती रही कलाम कह रहा है, तो फिर ये सब चीजें नजर क्यों आती हैं? कलाम तो फियल हकीकत है, कलाम तो नहीं बदल सकता, मगर शायद हम में कोई खराबी है, शायद हम कलाम के हुक्म को उस तरीके से नहीं मान पा रहे, या हम उस तरीके से कलाम की पैरवी नहीं कर रहे। तो आज ये सब हम लोगों पर एक सवालिया निशान है कि हमने इस बात को ज़ेरे गौर लाना है कि अगर दुख और नाला चला गया है, रंजो सितम चले गए हैं, तो फिर जिंदगियां इतनी दुखी क्यों हैं? रंजो नाला क्यों है? परेशानियां क्यों हैं? अजीजों, ये वक्त है कि जब हम खुदा की हजूरी में हैं तो इस बात को हम समझने की कोशिश करें कि खुदावंद खुदा कलाम के वसीला से हमने क्या फरमाता है। वो तमाम चीजें, वो तमाम वादे जिनका खुदावंद खुदा यहां कह रहा है, वो सब चीजें खुदावंद खुदा ने जारी कर दी हैं। हालेलुया। इसके बाद हम देखेंगे 5वीं आयत में, क्योंकि कलाम खुदा में यह भी लिखा है कि और वो चीजें नई हो गई। नई किन के लिए हो गई? जिन्होंने पुरानी इंसानियत को तर्क किया, जिन्होंने नई इंसानियत को अपनाया, और जिन्होंने बपतिस्मा लेकर खुद को खुदावंद खुदा के सपुर्द किया, खुदावंद के सामने खुद को सरेंडर किया, फिर खुदा के पाक रूह ने भी उनकी जिंदगी में काम करना शुरू किया। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। हालेलुया। और यह बात फियल हकीकत सच है कि जब तक लोग खुदा के साथ पेवस्त नहीं होते, वो अपनी सोच के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वो अपनी अक्लो हिकमत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जिसकी वजह से वो कभी खुदा के साथ मेल मिलाप में नहीं आ पाते। मगर खुदावंद खुदा क्या कहता है? जो तख्त पर बैठा हुआ है उसने कहा है कि मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। जब आप बपतिस्मा लेकर खुदावंद खुदा के हजूर आते हैं, खुद को सरेंडर कर देते हैं, उसके ताबे हो जाते हैं, तो वो आपके दिल को भी नया कर देता है, आपकी सोच को भी नया कर देता है, और आपकी पूरी जिंदगी को नया कर देता है। और फिर आप बदन और खून की रविश से नहीं बल्कि कलाम की बातों के मुताबिक चलते हैं। हालेलुया। और कलाम खुदा में ये बात भी बड़ी फियल हकीकत सच लिखी है, फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। क्योंकि ये बातें
सच और बरहक हैं, क्योंकि ये बातें होनी ही हैं। और लिख ले, ये बातें ना सिर्फ आज कल बल्कि दुनिया की इंतहा तक ऐसे ही रहेंगी। ये बातें, ये सारे वादे ना सिर्फ आपकी जिंदगी में पूरे होंगे बल्कि आपकी औलाद भी ये बातें देखेगी। हालेलुया। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बरकतें अगर हम देखें यशायाह 65 बाब और उसकी 17 आयत से ऑनवर्ड, तो हमें देखने को मिलती हैं कि खुदावंद खुदा के कैसे बड़े वादे हैं अपने लोगों के साथ। यशायाह 65 बाब और उसकी हम देखेंगे 13 आयत से। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देखो मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम शर्मिंदा होगे। नेक्स्ट आयत। और मेरे बंदे दिल की खुशी से गाएंगे पर तुम दिलगिरी के सबब से नाला होंगे और जानकनी के वावेला करोगे। नेक्स्ट आयत। और तुम अपना नाम मेरे बरगजीदों की लानत के लिए छोड़ जाओगे। खुदावंद खुदा तुमको कत्ल करेगा और अपने बंदों को एक दूसरे के नाम से बुलाएगा। नेक्स्ट वर्स। यहां के जो कोई रुए जमीन पर अपने लिए दुआरे खैर दुआए बरहक के नाम से करेगा और कोई जमीन में कसम खाए खुदाए बरहक के नाम से खाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता मुसीबतें फरामोश हो गई, वो मेरी आंखों से पोशीदा हैं। हालेलुया। बाज दफा हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे दुख होते हैं कि हमें अपने माजी से बाहर निकल आना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, मगर जब हम खुदा के साथ पेवस्त हो जाते हैं तो खुदावंद खुदा उन सब चीज़ों को मिटा डालता है। असर नो हमें नया जोर देकर नया कर देता है। इसीलिए ये वक्त है कि हम अपनी पुरानी इंसानियत को तर्क करें और नई इंसानियत में शामिल हो जाएं। नई इंसानियत में जब हम शामिल होंगे तो उसमें आहो नाला नहीं है, उसमें दुख और दर्द भी नहीं है, उसमें तकलीफें भी नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो खुदावंद खुदा को आप अपने साथ साथ पाओगे। और ये सब कुछ तब ही मुमकिन है जब आप अपनी पुरानी इंसानियत को उतार फेंकोगे और नई इंसानियत में पेवस्त हो जाओगे। हालेलुया। अजीजों, ये वक्त है कि जब खुदावंद खुदा ने हम सब पर यह फजल किया है, हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और कलाम की तमाम सच्चाइयों से वाकिफ हैं, तो जरूर ही हमें ना सिर्फ खुदा की खुशखबरी को अपने तक महदूद रखना है बल्कि औरों तक भी पहुंचाना है, ताकि खुदा का वो इरशाद आज़म जो खुदा ने अपने फजल के वसीला से अपने लोगों को दिया है, उसी की रोशनी में हम औरों तक पहुंचाने वाले बने। क्योंकि खुदावंद खुदा ये चाहता है कि उसके लोग जमीन पर बढ़ें और मामूर हों, और मल्टीप्लिकेशन खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद ये चाहता है जो उसकी भेड़ें हैं उसकी आवाज सुने और उसी आवाज को औरों तक पहुंचाएं, ताकि वो हमारे तमाम बहन भाई जो इस वक्त और आज तक निजात से महरूम हैं, ताकि वो इस निजात को हासिल कर सकें। क्योंकि जब तक हम पुरानी इंसानियत में रहेंगे हम नई निजात का और फजल के दौर का तजर्बा नहीं कर सकते। क्योंकि पुरानी इंसानियत में आपने देखा है कि वहां पर आहो नाला है, बड़ी अजियत है, बड़ी तकलीफ है, मगर जब हम नई इंसानियत में शामिल होते हैं, जब हम खुदा का इकरार कर लेते हैं, जब हम खुद को सरेंडर कर देते हैं, तो फिर हमारे लिए नई दुनिया है, नया आसमान है, नया यरूशलेम है और नई हैकल है। और अजीजों, खुदावंद खुदा के हजूर इस बात के लिए बड़ी शुक्रगुजारी किया करें कि खुदावंद खुदा ने आपको अपने इस फजल के दौर में रखा है। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप सब अपने कदमों पर खड़े हों और हम खुदावंद खुदा से ये फजल मांगेंगे कि खुदावंद खुदा इस बेदीदी के दौर में जब हम देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और जब हमें किसी चीज की ताकीद की जाए तो उसे फरामोश करते हैं, गो कि हम उसका इनकार करते हैं। मगर कलाम खुदा हमें इस बात की तरगीब देता है कि हम हमेशा उसके हुक्मों के मुआफिक चलें, अपनी जिंदगियां उसके ताबे रखें, खुद को उसके सामने सरेंडर करें, और वो जिंदगियां जो मौत की राहों पर हैं उन तक खुदावंद खुदा की खुशखबरी को पहुंचाएं।
ताकि ज़मीन पर बड़ी कुदरत के साथ खुदावंद खुदा का काम हो और खुदा के लोग अपनी निजात के वारिस ठहरें। सब कुछ मांगा और पाया उसके बुजुर्ग नाम के वसीला से, आमीन। थैंक यू।